Fourth. Good morning, dear students. Again, welcome back in the class. Yesterday we have learned about the midpoint theorem. Now again I am reminding you what is midpoint theorem. If a line joining the midpoints of two sides is parallel to the third side and half of the third side, its converse. If a line drawn through the midpoint of any one side parallel to the other side bisect the third side, this is the converse of MPT. Now we are going to consider example number 8. In this example, three lines are parallel, L, M and N. P and Q are intersecting them at A, B, C and D, E, F, such that AB is equal to BC. This is given directly in the question, so we have to write them given from the questions. No change is there, and we have to prove D is equal to EF. हमने यहाँ पर ये लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है. AB इक्वल टू BC ये गिवन है, तो फिर B इसका मिड पॉइंट होगा, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं. M पैरेलल टू N ये गिवन है, तो BG पैरेलल टू CF होगा, क्योंकि B और G M पर लाई करते हैं, C और F N पर लाई करते हैं. तो फिर नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द रिलेशन दैट द लाइन throwing through the midpoint of one side parallel to the another side, so definitely it will bisect the third side, so we can get out the result AG is equal to GF. Now in triangle FAD, G is the midpoint of AF. using first लिख देंगे हमने इसको प्रूव किया है. L और M लाइन पैरेलल है, तो therefore AD parallel to G, because A and D lies on L and G and E lies on M. Therefore ये लाइन पैरेलल है, ये मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है. therefore E is the midpoint of DF. तो ये जो है इसका मिड पॉइंट होगा DF का, because this is the third side of triangle FAD. Because we are considering this triangle, therefore D is equal to EF. E is the midpoint, so therefore D is equal to EF. This is the result. So proved it. Now the questions of the exercise 8.2. First question. ABCD is a quadrilateral. PQRS are the midpoint. P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है, S इसका मिड पॉइंट है. PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and AD. AC is the diagonal. ये इसका डायगोनल है, तो देन वी हैव टू प्रूव SR पैरेलल टू AC. SR इसके पैरेलल होगी. बहुत ही सिंपल हमें यहां पर प्रूव करना है. टू प्रूव गिवन आप क्वेश्चन से लिख लेंगे, टू प्रूव भी आप क्वेश्चन से लिख लेंगे, लेकिन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू राइट इट बिकॉज आई कैन टेक हेल्प इट. एस पहला है आपका SR पैरेलल टू AC and SR is half of AC. दूसरा रिजल्ट है PQ is equal to SR, और तीसरा रिजल्ट है PQRS is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम होगा PQRS, ये हमें प्रूव करना है. सो वी हैव टू ज्वाइन इट. proof.
PQRS is a parallelogram if its opposite sides are parallel. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहला रिजल्ट प्रूव करने के लिए इन ट्राइंगल ADC आप लिखेंगे S इज द मिड पॉइंट, ऑफ AD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, आप पूरा लिखेंगे. So we can find result that for SR parallel to AC using midpoint theorem. No need to given any excuse. ये जब इसके मिड पॉइंट होते हैं तो लाइन्स के पैरेलल होगी, हमने इसको प्रूव की. We already proved it in this theorem, so we can use it. Give name first. And SR is half of AC. Second, ये भी yesterday I proved it as I show. So now second, PQ is equal to SR. So now in triangle, for the second result, in triangle BAC, यहां लिखेंगे हम P since यहां पर आप गिवन लिखिए, यहां पर भी गिवन लिखिए, हम लिखेंगे P is the midpoint of AB, also given Q is the midpoint of BC, also given. So therefore we can give result PQ parallel to AC, this is third, and PQ is half of AC, this is fourth. By MPT, midpoint theorem, our second result is from first and second and fourth, फर्स्ट एंड थर्ड लिख लेंगे पहले, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास आएगा SR पैरेलल टू PQ, एंड फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ SR इज इक्वल टू PQ. ये दोनों इसके इक्वल है और पैरेलल है, तो हमारा फोर्थ रिजल्ट, सो वी कैन से देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ये आपका प्रूव हो गया. रीजन लिख देंगे इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल is parallel, equal and parallel, then it is a parallelogram. Now the second question, hence proof. Now the question number second, all the questions are simple. ABCD is a rhombus. ये रोम्बस गिवन है हमारे पास. PQRS आर द मिड पॉइंट, ऐसे ही सेम आज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. तो यहां पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, शायद मैं कम लिखूंगा. शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन AC, गिवन आप क्वेश्चन से लिख लेंगे. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC प्रूफ.
You can use the proof as you write in the question number first. S is the midpoint of in triangle ADC और ABC आपको सेम PQRS तक आपको ऐसी चीज लिखना है, और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रिजल्ट था हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, सेकंड और फोर्थ नहीं लिखना है। तो आपके पास आपको सेम करना है क्योंकि PQRS नो चेंज विल बी देयर, आपको वहां तक ऐसी चीज लिखना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, डू एज in question first, as do in question first। प्रूफ आपको पूरा प्रूफ यहां पर लिखेंगे इज अ पैरेललोग्राम तक। हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ये हमारा रोम्बस है, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, जब उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। वी हैव टू प्रूव दिस वन इज 90 डिग्री। इसके डायगोनल से ऊपर कट करते हैं, इसको टी और यू नाम देंगे। हम लिखेंगे सिंस, इसके बाद OT पैरेलल टू PU यूजिंग, थर्ड लिख देंगे हम, जहां पर हमने इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव किया हुआ होगा फर्स्ट का पार्ट में, थर्ड लिखेंगे। सिमिलरली इस लाइन को TP PT पैरेलल टू OU, ये लाइन आपकी इसके पैरेलल है तो इसका मतलब इसका ये पार्ट भी पैरेलल होगा, और ऐसे ये लाइन इसकी पैरेलल है तो इसका ये पार्ट भी पैरेलल होगा। पैरेलल यूजिंग, इसको यूजिंग थर्ड लिखा, इसको सिमिलरली लिखा। तो देयरफॉर हमारे पास देयरफॉर OTPU इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। देयरफॉर एंगल TPU इज इक्वल टू एंगल TOU, इसको हम 5 नंबर देंगे। रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल, सो पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हम पैरेललोग्राम को शो किया, इसको हमने अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बट एंगल TOU इज इक्वल टू 90 डिग्री। 6 नंबर लिखेंगे, सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस intersecting at right angle, this is the property of rhombus, कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। देयरफॉर एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर PQRS is a rectangle। Now the question number 3rd, ABCD is a rectangle, ये रेक्टेंगल है। PQRS, और इसको हमें, ये उल्टा हो गया उसका, उसमें ये रोम्बस था
रेक्टेंगल प्रूव करना था, इसमें रेक्टेंगल है, रोमस प्रूव करना है। ये इसके मिड पॉइंट हैं पी क्यू आर और एस। इसमें भी आपको पी क्यू आर से पैरेललोग्राम यू हैव टू राइट सेम एज वी हैव डू इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें भी आपको वो सारा काम करना है। कहां तक? पी क्यू आर एस प्रूफ, पी क्यू आर डू एज डू इन क्वेश्चन फर्स्ट। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये लास्ट लाइन होगी आपकी। ये पैरेललोग्राम हो गया। इसको रोम्बस प्रूव करना, उसके लिए हमें ये साइड इसके इक्वल प्रूव करना होगा। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ए एस एंड ट्राइंगल पी बी क्यू। आप लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू पी बी। P is midpoint of AB. Angle PAS is equal to angle PBQ is 90 degree. Each angle of rectangle लिख सकते हैं is 90 degree. AS is equal to BQ, half of equal sides. इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो ये उनके हाफ होंगे। Therefore triangle PAS is congruent to triangle PBQ by SAS rule. Therefore PS is equal to PQ, which is, इसको हम CPCT लिखेंगे, नीचे लिखेंगे which is a pair of adjacent side of parallelogram. Therefore PQRS is a rhombus. Proved it. Thank you.